So far, we have discussed about the meaning and definition of risk management, loss exposure, and perils. In this video, we will discuss about the objectives of risk management. Important objectives of risk management are classified as pre-loss objectives and post-loss objectives. Pre-loss objectives means the objectives of a risk manager that he has to attain before an actual loss has occurred. तो लॉस होने से पहले जो स्टेप्स एक रिस्क मैनेजर से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं या एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंस्टॉल किया है उसको अटेन करने हैं, तो वो प्री लॉस ऑब्जेक्टिव्स हैं। और पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव होते हैं जो लॉस हो जाने के बाद अटेन करने ज़रूरी हैं। So let's discuss first the pre-loss objectives. Pre-loss objectives are further divided into three categories: economy, reduction of anxiety, and meeting legal obligations. Now, what is meant by economy? The first objective of risk management is to adopt different techniques of risk management such as insurance, safety programs, etc. in the most economical way. Most economical way means that cost of preparation to minimize or control potential loss or exposure should not be too high. Means cost should not be too high that it is better to have the loss rather than minimizing it. So the benefit of reducing the loss or benefit of minimizing the loss, if that benefit is less as compared to the cost that has been incurred to adopt the safety programs or risk management techniques, then it is advisable to incur the loss from the risk only. So what will be the use of installing such a program जो इतना कॉस्टली हो कि उससे बेटर हमें लगे कि रिस्क ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। सो वन मस्ट ensure that the program that we are installing in our organization or the techniques that we are choosing, they must be economical. Second is reduction of anxiety. So the objective is to reduce the anxiety of the key executives or the owner of the business, because certain losses can cause great fear and worry. For example, lawsuit because of defective products. So if there is a defective product and the customer uses that defective product, so he may go into the court, and such legal obligations, such legal lawsuits, they are very expensive for the organization. Not only they lose their money, they lose their goodwill in the eyes of customers. So such a loss creates anxiety in the minds of the owner of the business or the managers, key executives, and even a risk manager. So for the purpose of reducing the anxiety, it is essential that we should install a risk management program in our organization. हम इंश्योरेंस, अगर हम एक पर्सनल इंडिविजुअल की बात करें तो वो इंश्योरेंस लेता है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस लेता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले रहा है, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं। उसका मेन पर्पस क्या है? नॉट ओनली कि हमको उससे पैसे की फाइनेंशियल जो हेल्प है वो मिलेगी, पर हमारी साथ के साथ जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी यानी एक जो वरी है, चिंता है हमें कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो कैसे मैनेज होगा, तो वो एंग्जाइटी जो है उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। सो रिस्क मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है दैट
it should result in reduction of anxiety. Third objective is meeting legal obligations. So meeting legal obligation means that to fulfill certain legal obligations imposed by the government. For example, installation of safety devices for protection of workers or disposal of hazardous waste materials properly. यानी गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जिसको कि आपको ऑब्लाइज करना ज़रूरी है. एनवायरमेंटल लॉज हैं या वर्कर्स से रिलेटेड लॉज हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे होते हैं, कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस बनाई हुई होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फुलफ़िल करना ज़रूरी है. तो उनको फुलफ़िल करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है दैट हेल्प्स अ लॉट. Our second type of objectives are post-loss objectives. These are the objectives which comes into the picture when a loss has been incurred by an organization. These losses are also divided into 5 categories. The first being survival of the organization. So role of risk management is not only limited to pre-loss period, rather after a loss has occurred, a risk management has certain other objectives to take care, and these are the post-loss objectives. The most important post-loss objectives is survival of the firm, which means that a firm can resume at least some of its operations within a reasonable time so that further loss of business income can be minimized and the survival can be ensured. So whenever a loss is there, it's not only it's okay if the loss is covered, okay, we will get the money, but what about the income that we are losing? It is important for any organization to come back, bounce back and start operating and earn the income, because it is necessary for the other stakeholders who are associated with that organization. So survival is very important. So risk management program जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है वो इंश्योर करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है सरवाइव कर सके आगे. सेकेंड इज कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू even after incurring the loss. For example, it is important for certain businesses to continue their services. For example, in case of banks, or there are businesses like dairies and bakeries which may otherwise lose their business to their competitors, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसे हैं कि जो कि डेली रिक्वायरमेंट के बिज़नेस हैं. तो अगर आप कुछ दिन के लिए भी ऑपरेशन बंद कर देंगे बिज़नेस का, तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं दे विल टेक योर मार्केट शेयर उनका बढ़ जाएगा और आप जो है कंपटीशन में लूज़ कर जाएंगे. तो ज़रूरी है कि लॉस हो जाने के बाद भी बिज़नेस जो है अपनी ऑपरेशंस कंटिन्यू करती रहे. तो कंटिन्यूएशन का ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज़ अटेन्ड बाय रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स. सिमिलरली इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कि ऑपरेशंस कंटिन्यू करें. सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट यही है कि पहले तो सर्वाइव कर सके ऑर्गेनाइजेशन, फिर जब सर्वाइव कर लेती है तो अब अपने बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं उनको कंटिन्यू करे, फिर अपनी अर्निंग्स को स्टेबलाइज करे, फिर ग्रो करे. ये जो है एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं. जब लॉस हो जाता है तो लॉस हो जाने के बाद ये नहीं कि अब सिर्फ पैसे आने की वेट कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे क्या किया जाए. नो, वी हैव टू start thinking from the very first day. In fact, before the loss has occurred, all these strategies are already decided by the risk manager, that how he will go about reducing the after effects of the risk that has been occurred. So stability of earnings he has to ensure,
कि अर्निंग्स जो है स्टेबलाइज हो जाएं, एक कंटिन्यूड अर्निंग आती रहें और साथ के साथ कंटिन्यूड ग्रोथ भी हो। ग्रोथ के लिए वो अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ डेवलप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, reaching out to new markets, or by acquiring or merging with other companies, etc. Then finally there has to be a social responsibility of the risk manager to minimize the effects of loss on whom? The stakeholders of the organization. कौन होंगे stakeholders? Like employees, suppliers, customers, investors, creditors and society at large. For example, a severe loss may result in shutdown of plant in a rural area for an extended period, and it may cause economic distress in that area due to loss of employment and other aspects also. So a risk manager or a risk management program must ensure survival of the business because it has a social responsibility towards its stakeholders and society at large. So all these are the objectives of risk management that a risk manager wishes to attain through the risk management program. Now how this risk management program is built? There are certain steps. This is known as risk management process. It has 4 steps. First is to identify loss exposures. सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो लॉस आइडेंटिफिकेशन है, दिस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इट गोज़ फॉर इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल अपना भी कर सकता है, सेम प्रोसेस रहेगी, या हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये कर सकते हैं. प्रोसेस विल रिमेन सेम. So if we are talking about individual, then individual needs to identify all the loss exposures, यानी ऐसी कौन कौन सी situations हैं जिसमें कि रिस्क होने की पॉसिबिलिटी है, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. सेकेंड स्टेप विल बी टू मेजर एंड एनालाइज द लॉस एक्सपोजर. तो अब जितने भी हमने लॉस एक्सपोजर आइडेंटिफाई किए हैं फर्स्ट स्टेप में, फिर उनको हम मेजर करेंगे. उसके बाद हम उनको एनालाइज करेंगे कि कौन सा लॉस एक्सपोजर या कौन सा रिस्क ऐसा है जो कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, जिसके कि हमको टेक केयर करनी बहुत ज़रूरत है. सो थर्ड स्टेप विल बी टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स फॉर ट्रीटिंग द लॉस एक्सपोजर्स. अब जो हमने यहाँ पे एनालाइज किए हैं लॉस एक्सपोजर्स और उनको हमने रैंकिंग दे दी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट नंबर पे है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो अब हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं रिस्क मैनेजमेंट की, उन टेक्निक्स को अप्लाई करना है टू रिड्यूस द लॉस एक्सपोजर का. हमको फ्रीक्वेंसी भी कम करनी है और उसकी सिवियरिटी भी कम करनी है. तो कंट्रोल करना है एक तरह से रिस्क को. हम कोई एक सिंगल टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं या हम कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. एंड फाइनली जो प्रोग्राम हमने बनाया है रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या बनाया है कि कौन कौन सी टेक्निक्स किस तरह के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एडॉप्ट की गई हैं, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड वी विल मॉनिटर इट. मॉनिटर मीन्स कि टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है, क्या कोई नए तरह के रिस्क से एक्सपोज्ड हो गई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, क्या हमें अपनी टेक्निक्स को चेंज करने की ज़रूरत है. तो इस तरह से हम उसको मॉनिटर भी करेंगे. सो दिस इज़ हाउ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस गोज़. अब इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में स्टडी किया है यहाँ पे. सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग द लॉस एक्सपोजर्स. ये सारे लॉस एक्सपोजर्स हम पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. प्रॉपर्टी लॉस क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टी रिस्क है, यानी हमारी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, ये सारे जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है. उसको लॉस एक्सपोजर क्या है, उसको रिस्क है डैमेज का.
डैमेज किसी भी कारण से हो सकता है, बट प्रॉपर्टी को नुकसान होने की संभावना है, सो दैट्स वाई इट इज़ प्रॉपर्टी लॉस एक्सपोजर. लायबिलिटी लॉस एक्सपोजर मीन्स lawsuits arising due to any reason, like for example defective products, environmental pollution, sexual harassment of employees, employee discrimination, wrongful termination, etc. Business income loss exposure is loss of income from covered loss. ये पार्ट हो सकता है इसका. Continued expenses after loss या extra expenses. क्या मतलब है कि लॉस अगर बिजनेस को हो गया, लेट सपोज द कंपनी हैज़ सफ़र्ड अ प्रॉपर्टी लॉस, तो जिसके कारण उसकी बिल्डिंग डैमेज हो गई है. अब वहाँ पर बिज़नेस जो है अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, जिसके कारण से जो बिज़नेस इनकम उसको होनी चाहिए थी वो अब नहीं हो रही. ठीक है, तो दैट इज़ लॉस ऑफ इनकम. इसके अलावा कंटिन्यूड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, यानी आप अपने बिज़नेस को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लग रहे हैं, या किसी तरह का आपका कंटिन्यूड एक्सपेंस है. लाइक फॉर एग्जांपल जो एग्जिस्टिंग जहाँ भी बिज़नेस था वहाँ पर आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो अभी भी एज इट इज़ है. इनकम तो बंद हो गई, जो कॉस्ट है वो अभी भी एज इट इज़ आपको पे करनी है. रेंट पे करना है आपको, प्रीमियम्स पे करने हैं, किसी तरह का फिक्स चार्ज आपको पे करना है, जो भी लीज़ वगैरह आपने ले रखी है तो वो लीज़ का अमाउंट आपने पे करना है, एट्सेट्रा. सो दीज आर कंटिन्यूड एक्सपेंसेस. ह्यूमन रिसोर्स लॉस एक्सपेंसेस एक्सपोजर्स, इट मीन्स डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ योर की एम्प्लॉयज़, या जॉब रिलेटेड कोई इंजरी हो जाए या किसी तरह की डिजीज़ हो जाए किसी वर्कर को बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ योर बिजनेस. ये सारे ह्यूमन लॉस एक्सपोजर्स हैं. क्राइम लॉस में आ जाता है लाइक थेफ्ट, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, एम्बेसलमेंट. एम्प्लॉय बेनिफिट लॉस एक्सपोजर मीन्स व्हेन यू फेल टू पे द प्रॉमिस्ड बेनिफिट्स टू योर एम्प्लॉयज़. कैसे प्रॉमिस्ड बेनिफिट्स? लाइक रिटायरमेंट प्लान्स या ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, या गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं रिगार्डिंग द एम्प्लॉय बेनिफिट्स. इफ़ यू फेल टू पे दोज देन your company is at risk. Foreign loss exposures are the exposures because of changes in the foreign currency and exchange rates, political risk, etc. Intangible property loss means damage to company's goodwill, market reputation and public image. Damage to intellectual property like patents, etc. Failure to comply to government regulations means when the company fails to fulfill the or comply with government laws and regulations like taxation rules, environmental laws, etc. Now, to identify these loss exposures, a risk manager can use certain sources. ये information मिलेगी कहाँ से? You can go by the historical data. पिछला डाटा आप उठा के देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ लॉस हुआ है, हिस्टोरिकल लॉस. या आप रिस्क एनालिसिस क्वेश्चनर्स बना सकते हैं, चेक लिस्ट बना सकते हैं. किसी तरह की फिजिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जो हैं दे विल ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द लॉस एक्सपोजर्स. फ्लो चार्ट्स दैट शोज द फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी and thus therefore revealing the bottlenecks and areas where loss may occur. तो ये जो है इंफॉर्मेशन इस तरह से हम गैदर कर सकते हैं. रिस्क मैनेजर कैन फाइंड आउट दी पॉसिबल लॉस एक्सपोजर्स. देन सेकेंड स्टेप इज़ टू मेजर एंड एनालाइज द लॉस एक्सपोजर. दिस स्टेप रिक्वायर्स एस्टिमेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी लॉस. So what is meant by loss frequency? Loss frequency is the number of times a loss may occur during a given time period. यानी एक given time period में कितनी बार एक particular loss हो सकता है. और दूसरा है हमारा loss severity. So let's suppose the loss exposure is, यह सिचुएशन जो है डैमेज टू प्रॉपर्टी
because of fire, let's suppose. So frequency, they have decided that in a year the particular frequency of loss because of fire may be 5 times, and the severity is, for each loss the loss will be of 1 lakh rupees. So total loss will be 5 lakh because of damage to the property caused by fire. So this is how we measure the loss exposures, कि उसकी frequency कितनी है उस particular loss के होने की, damage to property, this will be property exposure. इसी तरह से liability exposure का निकालेंगे. इसी तरह से जितने भी exposures जो हमने हमारी कंपनी के लिए आइडेंटिफाई किए हैं सभी की हम लॉस फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, लॉस सीवियरिटी निकालेंगे, और फिर हम टोटल निकालेंगे कि कितना हमारा हर एक का कितना लॉस निकल के आता है. एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग दिस वी विल देन रैंक देम. रैंकिंग करेंगे सबसे नंबर 1 पे जिसमें मैक्सिमम लॉस होगा. उसके बाद ऐसे करके इस ऑर्डर में नंबर 2, नंबर 3 ऐसे उनको हर एक लॉस को देते जाएंगे. सो वी विल एनालाइज द टोटल लॉस on this basis and we will find out that which kind of loss are highly important. So a loss exposure with a potential to bankrupt the firm is more important. So there is need to estimate maximum possible loss. Maximum possible loss क्या है? Which is the worst loss that could happen to a firm during its lifetime. And the probable minimum loss, maximum loss is the worst loss likely to happen, that is also estimated. This is done to select a technique to treat loss exposure. क्यों कर रहे हैं हम ये सारा काम? क्योंकि हमको फिर ये पता करना है कि अब कौन सी टेक्निक यूज़ करें रिस्क मैनेजमेंट के लिए. So these will be risk management techniques. सो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, इसको हम रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ भी बोलेंगे. सो दिस इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स. वन इज़ रिस्क कंट्रोल एंड द सेकेंड वन इज़ रिस्क फाइनेंसिंग. तो रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहला काम क्या है? प्रिवेंटिव काम. यानी कि हमको कोशिश करनी है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को या जो उसकी सिवियरिटी को है उसको हम किसी तरह से रिड्यूस कर सकें, कम कर दें, रिड्यूस करें या मिनिमाइज करें. तो दैट इज़ कॉल्ड रिस्क कंट्रोल. यानी ऐसी टेक्निक जिससे लॉस के होने की फ्रीक्वेंसी और लॉस की सिवियरिटी दोनों ही रिड्यूस हो जाएं या मिनिमाइज हो जाएं. ये जो टेक्निक्स हैं रिस्क मैनेजमेंट की, दे नेवर एलिमिनेट द रिस्क. एलिमिनेट नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ एवॉइडेंस है जो कि रिस्क को ज़ीरो कर देती है. बाकी सारी रिस्क जो हैं, जो सारी टेक्निक्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं. सो द फर्स्ट टेक्निक अंडर रिस्क कंट्रोल इज अवॉइडेंस. अवॉइडेंस मीन्स avoiding existing loss exposures or abandoning situation prone to high risk. For example, loss from flood can be avoided by building a factory on high ground instead of an area prone to frequent floods. जहाँ बार बार फ्लड आती है, ऐसी जगह फैक्ट्री बनाने की बजाय ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पर फ्लड आती नहीं है. तो इससे क्या करेंगे हम हमारे कंपनी को होने वाला रिस्क जो कि फ्लड से हो सकता है वो ज़ीरो कर देंगे. सो बाय यूजिंग दिस टेक्निक चांस ऑफ लॉस ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रिस्क इज़ reduced to 0. बट फर्म में नॉट बी एबल टू अवॉइड ऑल लॉसेस. सभी लॉस को तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि सभी लॉसेस को अवॉइड करने लगेंगे तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे. सो इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ अवॉइडिंग टेक्निक. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज़ अ पेंट फैक्ट्री एंड पेंट फैक्ट्री से जो है अगर कोई लॉस हो रहा है
अराइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ पेंट, तो फिर इसका मतलब तो आपको पेंट प्रोडक्शन बंद ही करना पड़ेगा, लेकिन पेंट प्रोडक्शन बंद तो कर नहीं सकते हैं. देयरफॉर whatever the loss that may arise because of the business, that has to be faced by the business. तो और अगर उसको अवॉइड ही कर देगा, बंद ही कर देगा, then the firm will not be in the business, फिर तो बिजनेस ही नहीं कर सकते. So avoidance is a technique which can be used in certain circumstances. हर जगह अवॉइडेंस हम नहीं लगा सकते. अवॉइडेंस का मतलब है कि वो काम करना ही नहीं है जिससे रिस्क हो, फिर ऐसे तो करके कोई काम ही नहीं कर सकते. बट देर आर सर्टेन सिचुएशन जहाँ बिल्कुल दिखता है कि यहाँ पे तो बिल्कुल ही लॉस हो जाएगा, तो वो काम आपने अवॉइड करना है. अब दिख रहा है यहाँ पे आग लग जाएगी, हाँ, तो आपने आग लगानी नहीं है. यू हैव टू अवॉइड दैट सिचुएशन. द सेकेंड इज लॉस प्रिवेंशन, विच विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. यहाँ पर आज इतना ही टिल अवॉइडेंस. थैंक यू.